اسلام کی بنیادی تعلیمات، خطبات مکمل، سوچنے کی باتیں، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک۔ مسلمان بھائیوں، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، ہر طرح کی کاٹ چھاٹ اور عدل بدل سے پاک اور ٹھیک ان ہی لفظوں میں موجود ہے جن لفظوں میں وہ اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و بے حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن انسانوں کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دے۔ وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو عزت اور طاقت دینے آیا تھا۔ وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور اتہاس گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر اب ان کے یہاں اس کا استعمال سوائے اس کے اور کچھ نہیں رہا کہ اس کو گھر میں رکھ کر جن اور بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں اور پلائیں، اور صرف ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملے میں ہدایت نہیں مانگتے، یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حق ہم پر کیا ہیں اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل غلط کیا، فرما برداری ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمارے لیے عزت، کامیابی اور فائدہ کس چیز میں ہے اور ذلت، نامرادی اور نقصان کس چیز میں۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہے۔ اب وہ خدا سے پھرے ہوئے دنیا پرستوں سے، کافروں اور مشرکوں سے، گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور ان ہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا، اور اسی کو یہ آج ہر جگہ ہر ملک میں بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، جتنی اور جیسی بھلائی آپ اس سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ آپ اس سے صرف جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمے کی کامیابی اور نوکری پانے اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی بیکار اور بے حقیقت چیزیں مانگتے ہیں تو یہی آپ کو ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگیں گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہیں گے تو یہ آپ کو وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ آپ کے حوصلے کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوند مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بھائیوں، جو مذاق اور ظلم ہمارے مسلمان بھائی اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں وہ اتنا بچکانہ ہے کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی آدمی کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھے تو اس کی ہنسی اڑائے، بلکہ اس کو پاگل ٹھہرائیں۔ بتائیے، اگر کوئی آدمی ڈاکٹر سے نسخہ پرسکرپشن لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہ آئے گی اور آپ اسے بیوقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے ڈاکٹر نے آپ کی بیماریوں کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے مثال نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ بتائیے، اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور دوائیوں کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ صرف اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر ہر بیماری سے چھٹکارا دلانے والے نے جو کتاب آپ کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو وہ نقصان دہ بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس آدمی پر لگاتے ہیں جو بیماری کو دور کرنے کے لیے صرف دواؤں کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہو تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔
मगर दुनिया के मालिक का जो खत आपके पास आया हुआ है और जिसमें आपके लिए दीन व दुनिया के तमाम फायदे हैं, उसे आप अपने पास यूं ही रख छोड़ते हैं। उसका मतलब समझने के लिए कोई बेचैनी आप में पैदा नहीं होती। क्या ये हैरत और ताज्जुब की बात नहीं? अल्लाह की किताब पर जुल्म का नतीजा। मैं ये बातें हंसी और दिल लगी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप इन बातों पर गौर करेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि दुनिया में सबसे बढ़कर जुल्म अल्लाह की इस पाक किताब के साथ हो रहा है। और यह जुल्म करने वाले वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और इस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक वे ईमान रखते हैं और इसे जान से ज्यादा प्यारी रखते हैं, मगर अफसोस यह है कि वही इस पर सबसे ज्यादा जुल्म करते हैं। और अल्लाह की किताब पर जुल्म करने का जो अंजाम है वह जाहिर है। खूब समझ लीजिए, अल्लाह का कलाम इंसान के पास इसलिए नहीं आता कि वह बदनसीबी और बदहाली व मुसीबत में पड़े। कुरान में है, ताहा, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कुरान सूरा 20 ताहा आयत 1-2। यह खुशनसीबी और खुशहाली का सरचश्मा है, बदबख्ती का जरिया नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई कौम खुदा के कलाम पर चले और फिर दुनिया में बेइज्जत हो, दूसरों की महकूम हो, पाँव तले रौंदी और जूतियों से ठुकराई जाए, उसके गले में गुलामी का पट्टा हो और गैरों के हाथ में उसकी बागडोर हो और वह उसको इस तरह हाके जैसे जानवर हाके जाते हैं। यह अंजाम उसका सिर्फ उसी वक्त होता है जब वह अल्लाह के कलाम पर जुल्म करती है। बनी इस्राइल का अंजाम आपके सामने है। उनके पास तौरात और इंजील भेजी गई थी और कहा गया था, अगर वे बनी इस्राइल तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों की पैरवी पर कायम रहते जो उनके पास उनके रब की तरफ से भेजी गई थी, तो उन पर आसमान से रोजी बरसती और जमीन से रोजी उबलती। कुरान सूरा 5 मायदा आयत 66। मगर उन्होंने अल्लाह की उन किताबों पर जुल्म किया और उसका नतीजा यह देखा। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत व रुसवाई और गिरावट व बदहाली उन पर छा गई और वे अल्लाह के गजब में घिर गए। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों से कुफ्र इनकार करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे, और इसलिए कि वे अल्लाह के नाफरमान हो गए थे और हद से गुजर गए थे। कुरान सूरा 2 बकरा आयत 61। इसलिए जो कौम खुदा की किताब रखती हो और फिर भी कुचली हुई, बेइज्जत और दूसरों की गुलाम हो, तो समझ लीजिए कि वह जरूर अल्लाह की किताब पर जुल्म कर रही है और उस पर यह सारा बवाल इसी जुल्म का है। खुदा की इस गजब प्रकोप से छुटकारा पाने का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि उसकी किताब के साथ जुल्म करना छोड़ दिया जाए और उसका हक अदा करने की कोशिश की जाए। अगर आप इस बड़े गुनाह से बाज ना आएंगे तो आपकी हालत हरगिज न बदलेगी। चाहे आप गाँव-गाँव कॉलेज खोल दें और आपका बच्चा ग्रेजुएट हो जाए और आप यहूदियों की तरह ब्याज खाकर करोड़पति ही क्यों ना बन जाएं। मुसलमान किसे कहते हैं? भाइयों, हर मुसलमान को सबसे पहले जो चीज जाननी चाहिए वह यह है कि मुसलमान कहते किसको हैं और मुस्लिम के मानी क्या है। अगर इंसान यह ना जानता हो कि इंसानियत क्या चीज है और इंसान व जानवर में क्या फर्क है, तो वह जानवरों की तरह हरकतें करेगा और अपने आदमी होने की कदर ना कर सकेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को यह ना मालूम हो कि मुसलमान होने के क्या मानी है और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क किस तरह होता है, तो वह गैर मुस्लिमों की तरह हरकतें करेगा और अपने मुसलमान होने की कदर ना कर सकेगा। इसलिए मुसलमान को और मुसलमान के हर बच्चे को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि वह जो अपने आप को मुसलमान कहता है तो इसके मानी क्या है। मुसलमान होने के साथ ही आदमी की हैसियत में क्या फर्क पैदा हो जाता है, उस पर क्या जिम्मेदारी आ पड़ती है और इस्लाम की हदें क्या हैं, जिनके अंदर रहने से आदमी मुसलमान रहता है और जिनके बाहर कदम रखते ही वह मुसलमानियत से निकल जाता है, चाहे वह जबान से अपने आप को मुसलमान ही कहता रहे। इस्लाम के मानी है खुदा की इताअत और फरमाबरदारी के। अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना इस्लाम है। खुदा के मुकाबले में अपनी आज़ादी व खुद मुख्तारी को छोड़ देना इस्लाम है। खुदा की बादशाही और हुक्मरानी के आगे सिर झुका देना इस्लाम है। जो आदमी अपने सारे मामलों को खुदा के हवाले कर दे वह मुसलमान है, और जो अपने मामलों को अपने हाथ में रखे या खुदा के सिवा किसी और के सुपुर्द कर दे वह मुसलमान नहीं है। खुदा के हवाले करने या खुदा के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि खुदा ने अपनी किताब और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हिदायत भेजी है उसको कबूल किया जाए, उसमें चूक चिरा ना की जाए, और जिंदगी में जो मामला भी पेश आए उसमें सिर्फ कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की जाए। जो आदमी
अपनी अकल और दुनिया के दस्तूर और खुदा के सिवा हर एक की बात को पीछे रखता है और हर मामले में खुदा की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, और जो हिदायत वहाँ से मिले उसको बेझिझक मान लेता है, उसके खिलाफ हर चीज को रद्द कर देता है, सिर्फ वही मुसलमान है। इसलिए कि उसने अपने आप को पूरी तरह खुदा के सुपुर्द कर दिया, और अपने को खुदा के सुपुर्द करना ही मुसलमान होना है। इसके बरखिलाफ जो आदमी कुरान और रसूल की सुन्नत तरीके पर नहीं चलता, बल्कि अपने दिल का कहा करता है, या बाप दादा से जो कुछ होता चला आया है उसकी पैरवी करता है, या दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक चलता है, और अपने मामलों में कुरान और सुन्नत से यह पूछने की जरूरत ही नहीं समझता कि उसे क्या करना चाहिए, या अगर उसे मालूम हो जाए कि कुरान और सुन्नत की हिदायत यह है और फिर वह इसके जवाब में कहता है कि मेरी अकल इसे कबूल नहीं करती, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता, या बाप दादा से तो इसके खिलाफ अमल हो रहा है लिहाजा मैं इसकी पैरवी नहीं करूंगा, या दुनिया का तरीका इसके खिलाफ है इसलिए मैं इसी पर चलूंगा, तो ऐसा आदमी हरगिज मुसलमान नहीं है। वह झूठ कहता है अगर अपने आप को मुसलमान कहता है। मुसलमान की जिम्मेदारियां। आप जिस वक्त कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और मुसलमान होने का इकरार करते हैं, उसी वक्त मानो आप इस बात का इकरार करते हैं कि आपके लिए कानून सिर्फ खुदा का कानून है, आपका हाकिम सिर्फ खुदा है, आपको इताअत फर्माबरदारी सिर्फ खुदा की करनी है, और आपके नजदीक हक सिर्फ वह है जो खुदा की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मालूम हो। इसके मानी ये है कि आप मुसलमान होते ही खुदा के हक में अपनी आज़ादी से दस्तबरदार हो गए। अब आपको यह कहने का हक ही ना रहा कि मेरी राय यह है, या दुनिया का दस्तूर यह है, या खानदान का रिवाज यह है, या फला हजरात या फला बुजुर्ग यह फरमाते हैं। खुदा के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुकाबले में अब उनमें से कोई चीज भी आप नहीं कर सकते। अब आपका काम यह है कि हर चीज को कुरान और सुन्नत के सामने पेश करें, जो कुछ उसके मुताबिक हो उसे मान ले, और जो उसके खिलाफ हो उसे उठाकर फेंक दे, चाहे वह किसी की बात और किसी का तरीका हो। अपने आप को मुसलमान भी कहना और फिर कुरान व सुन्नत के मुकाबले में अपने ख्याल या दुनिया के दस्तूर या किसी इंसान के कौल या अमल को तरजीह देना, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। जिस तरह कोई अंधा अपने आप को आंखों वाला नहीं कह सकता और कोई नाक कटा अपने आप को नाक वाला नहीं कह सकता, उसी तरह कोई ऐसा आदमी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता जो अपनी जिंदगी के सारे मामलों को कुरान और सुन्नत के ताबे अधीन बनाने से इनकार करे और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपनी अकल या दुनिया के दस्तूर या किसी इंसान के कौल या अमल को पेश करे। जो शख्स मुसलमान ना रहना चाहता हो उसे कोई मुसलमान रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। उसे इख्तियार है जो मजहब चाहे अपना ले और जो नाम चाहे रख ले, मगर जब वह अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसको खूब समझ लेना चाहिए कि वह मुसलमान उसी वक्त तक रह सकता है जब तक वह इस्लाम की सरहद में है। खुदा के कलाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक और सच्चाई की कसौटी मानना और उसके खिलाफ हर चीज को गलत समझना इस्लाम की सरहद है। इस सरहद में जो आदमी रहे वही मुसलमान है। इसके बाहर कदम रखते ही आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है और इसके बाद वह अगर अपने आप को मुसलमान समझता और मुसलमान कहता है तो वह खुद अपने आप को भी धोखा देता है और दुनिया को भी। और जो लोग अल्लाह की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक फैसला ना करे वही कुफ्र करने वाले हैं। कुरान सूरा 5 मायदा आयत 44।